ठीक है। तो Yes, अब ma'am. अब इसको रिकैप करते हैं। नाउ यू हैव टू fill in the relevant bubble for each part carries one mark. You have to select the correct option. Love is blind. Is it personification, simply metaphor or alliteration? Ma'am, metaphor. नहीं, it's not नहीं, metaphor. personification. Personification. Personification because Yes. love has been given human quality which is blind, right? Yes. G. Second one, dash, it was raining, I still walked to Although. school. Although, right? The next one, No, doctor. Prescription. prescription, very good. Which one of the following sentences has the use of intransitive verb? Usman sold his old bike here to his When the friend. horse galloped wildly. Lover kicked the football, the horse galloped wildly, or she left the keys on the table. The horse galloped wildly. Very well done because there is no direct Object. object. Very well done. The next one is I can't help you with your homework because I am not very good at geometry. Dash, I know someone who can choose the appropriate word. However, in addition, for example, subsequently. However. However. Sonnet is an example of poetry, drama, fiction, or novel. Poetry. Poetry, very well done. Acha ji. How happy is he here? Choose the poetic device used in the line. कौन सी Alliteration. poetic Alliteration. deviation? Very well done. क्या यूज हुआ है लिटरेशन में? कैसे यूज होगा? क्या पता चलेगा? Then repetition of the word. Ma'am, how and happy both have the letter H. हाँ जी, repetition of the consonant word that comes in the beginning. ओके, अब देखो एच पहले आ रहे हैं सारे, याद रखें। ये मैं आपको बताती हूँ फर्क क्या है लिटरेशन में एंड कॉन्सोनेंट्स में, एसोनेंट्स में। ये अभी मैं आपको सारा करवाती हूँ, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच में। I felt an intolerable sorrow realizing that my friend could be so mean. The underlined word has the same meaning as intolerable, Unbearable. 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 Very well done. It has been an extremely brutal summer with very hot temperatures. What does the word brutal mean? Harsh. Harsh. He is interested dash learning English. Fill in the blank with suitable In. preposition. In. Select the plural form of the word alumnus. Alumni. Alumni. Acha, what is alumna? Do you remember I told you? Alumna No. is the singular. Alumna is the singular word for female, and the plural of this word is alumni. ठीक है? Okay. जो फीमेल के लिए लमना यूज होता है, जैसे लड़के के लिए लमनस यूज होता है, और इसका प्लूरल लमनाए होता है, और गर्ल्स का जो प्लूरल है ना फीमेल के लिए, वो लमनाए होता है। लमनाए ये वाला और ये वाला लमने। ठीक है। अच्छा, these students are best friends and they plan to go to college together. Identify the sentence type as simple, compound, complex, compound, complex. Compound. Compound, why? Ma'am, fanboys. Very well done. My sister is very kind and generous person dash she helps me with my homework and drives me to basketball practice. For example. For example, Tanya is older dash Saira while Resham is dash oldest. Fill in the blanks with suitable words related to degree of adjective. Ma'am, A option. A option, then and would you mind dash the gate please? Fill in the blanks. Closing the gate. Closing. अच्छा, बी पार्ट हमने कर लिया था, राइट? Ma'am. अच्छा जी, अब बी पार्ट करना है दोबारा। इसकी समरी रहती थी, ये समरी आप करेंगे और मुझे उस पे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है? अच्छा, Okay. चलिए बच्चे, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। पैराफ्रेज दी when in one of the following stanzas, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. G, how will you paraphrase it? Hmm. Just use Uh, the the, simple words, okay? yes, ma'am. The poet says that the woods are so lovely that he wants to stay here for the rest of his life or for most of his time, but he has promises to keep and fulfill the responsibilities of life. Thus, he would not be able to stay here, and he Serenic beauty. Very well done. Okay, Hadi joined the class. Acha bache, let me tell you how I will write it, okay? How I will write the paraphrasing of this stanza. You must have to mention the name of the poem, right? You must have to mention the name of the poem and the poet. uh, poet. Hadi, welcome bache.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हाउ आर यू? गुड मैम। अच्छा जी। So Hadi, we have just started question number 3. Paraphrase any one of the following stanzas. Can you paraphrase the first stanza? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Ayan, come in front of camera, Ayan Ali. Where are you, बच्चे? हाँ जी. Okay, let me do the paraphrasing of it. The poet Robert Frost, in the poem Stopping by Woods on a Lovely Evening, finds the woods very overwhelming because of the darkness and vastness and beauty. But he has obligations to fulfill for which he has to cover miles, therefore, he cannot stay and enjoy the serenity of the woods. Is that clear? Bache, did you get me how I paraphrase it? How I paraphrase this stanza? Hadi, bache, where is Hadi? Hadi left the class. अच्छा जी. Okay, बच्चे, the second one is the man of life upright whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thought of vanity. Let me paraphrase this one. बच्चे, you can write down the paraphrasing of the second stanza. Okay? मैम एक सेकंड रजिस्टर ले। ले आए. Go and bring your register. अच्छा, Ayan Ali? यस मैम। But see, if you look at the stanza, it's very easy to write it in the prose form, right? The man of life upright. Upright कहते हैं when you have very simple life, okay, free of any dishonesty. Whose guiltless heart is free means the person whose life is very simple, he is free from any kind of dishonesty and stress, from all dishonest deeds. यानी कोई भी sin नहीं वो करता. He is free from all kind of sins और thought of vanity. Vanity कहते हैं एम्प्टीनेस को. ठीक है, मतलब व्हेन यू हैव अ स्पेस, तो उसकी जो सोच है वो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती. तो सो राइट डाउन द पैराफ्रेजिंग ऑफ इट. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट एन ऑनेस्ट पर्सन. The poet is talking about an honest person that his life is free from sinful acts, that his life is free from sinful acts, and he never indulges, and he never indulges in any dishonest act towards others. लिख लिया बच्चे? दिस इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ द सेकंड स्टैंजा. ठीक है, अगर ये आ जाता है तो आपके पास पैराफ्रेजिंग होगी. यू कैन राइट डाउन दिस much paraphrasing and it would be enough for 3 marks, right? Because we do not know the name of the poem, I will search it on the Google and then I'll tell you about the poem and the name of the poet. Okay? Okay, ji. Read the following stanza carefully and answer the questions given at the end. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Okay, बच्चे, the first question is identify and write any two poetic devices used in the stanza. अच्छा, यार अली, okay, wait. यार अली, question. क्या यार, क्या बोल रहे बेटा? पोएटिक डिवाइसेस को फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं.
मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी। चले आपने पूछ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब्दुल्ला वेलकम बच्चे। अस्सलाम Yes, वालेकुम। sir. वालेकुम Walaikum salam. अस्सलाम। आर यू वेक नाउ? Yeah. हाँ, आप क्लास लेने के उसमें हो, है? समझ आ रही है Yes, ma'am. क्या चल रहा है स्क्रीन पर? वी आर डिस्कसिंग द सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर्स। ओके ओके जी। जी अयान, यू आर आस्किंग मी अबाउट इज द पोएटिक डिवाइस सेम लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट? फिगर्स ऑफ स्पीच में आपके पास प्रोज एंड पोएट्री की सारी चीजें आ जाती हैं, डिवाइसेस, राइट? पोएटिक डिवाइसेस जो होती हैं उसमें सिर्फ पोएट्री रिलेटेड जो चीजें होती हैं ना, जैसे सिमिली, मेटाफर, एसोनेंस, कंसोनेंस, ओनोमेटोपिया, हाइपरबले, एलिट्रेशन, ठीक है? तो ये सारी चीजें पोएटिक डिवाइसेस में आती हैं। प्रोज की और डिवाइसेस होती हैं, वो आप लोग नहीं अभी पढ़ोगे, तो इसीलिए से पोएटिक डिवाइसेस पढ़नी है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में सारी आ जाती हैं, प्रोज की भी, पोएट्री की भी, ठीक है? Yes. अच्छा जी, व्हाई यू टर्न ऑफ योर कैमरा? अच्छा जी, identify and write any two poetic devices used in the stanza. जी बच्चे, go through the stanza and tell me any two poetic devices used in the stanza. Abdullah, you as well बच्चे. Ma'am, 10,000 saw at a glance, hyperbole. This is hyperbole, yes. I'm tossing their hands in sprightly dance personification. Personification, what else? You must know about other poetical devices as well. What about simile? Is there simile used in this stanza? Yes, ma'am. Continuous as the stars that Very well shine. done. Very well done. And what about Ayan? जी अयान, अयान रफीक। मैम पहली लाइन है मेटाफर यूजुअल। कौन से आपकी बात कर रहे हो? रीड द फॉलोइंग स्टेंजा में कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। जी हाँ कैसे? मैम, वो डैफोडिल्स को हम स्टार से कंपेयर कर रहे हैं ना मैम। हाँ, तो वो तो Yes, ma'am. कंपैरिजन हुआ ना। हम तो मेटाफर में कंपैरिजन नहीं करते। हाँ, लेकिन उसको नेम तो नहीं दिया हुआ ना, डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए उन्होंने एज यूज किया है। वो तो स्टार्स की ठीक बात कर रहे हैं, जो शाइन यहाँ पर है ना यार, ये शाइनिंग स्टार्स के लिए है, डैफोडिल्स के लिए नहीं है, इसलिए मेटाफर नहीं है इसमें। ठीक ठीक है यार? ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, व्हाट अबाउट, मेटाफर नहीं है यहाँ। अच्छा जी, व्हाट अबाउट नेवर एंडिंग लाइन? व्हाट इज दिस? जो कभी ना खत्म होने वाली लाइन है, व्हाट इज दिस? Hyperbole. हाइपरबले, वेरी वेल डन। एंड व्हाट एल्स? मिल्की वे, व्हाट इज मिल्की वे? Galaxy. Galaxy. नहीं, गैलेक्सी तो है, लेकिन यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस के लिए यूज हुआ है? इमेजरी, इमेजरी, दे आर क्रिएटिंग एन इमेज इन योर माइंड। समझ आ रही है? मिल्की वे जो आपके पास है, ये इमेजरी की एग्जांपल है। यान अली, आर यू गेटिंग मी? Yes, अब्दुल्ला, ma'am. आप लिखोगे द एग्जांपल ऑफ इमेजरी इज ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। आप जब आप पढ़ते हो मिल्की वे, तो आपके माइंड में एक सीनरी क्रिएट हो जाती है, तो इमेजरी में यही तो होता है, तो वो एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है। ठीक है? आपने पर्सनिफिकेशन बताई, आपने हाइपरबले बताई, आपने मुझे सिमिली बताई, और इसमें आपके पास आ गया इमेजरी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन लाइफ? हु विल टेल मी अबाउट इट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर? हाउ ब्यूटी अफेक्ट्स अस? इन विच वे इट अफेक्ट्स अस अकॉर्डिंग टू दिस पोम? Ma'am, those person who are filled with anxiety or loneliness, they can visit the garden and enjoy the beautiful scenery of the um, beautiful scenery of the nature to relax their Very mind. well. It has very peaceful and calm effect on human beings because they
can remove their worries and stress by being with the beauty or keeping in touch with the beauty. Is that clear? It has a very pleasant and serene effect on human life. It makes human being to remove the worries of life and the stress of human life. Is that clear? Is that clear, Abdullah? Ayan, are you getting me or no? Yes, समझ ma'am. आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. अच्छा जी, the Yes, third ma'am. one is explain what is stated clearly and what is implied message of the stanza. What have you learned by reading this stanza? You just have to state it clearly. What is the message the poet is trying to convey? Who will tell me? That the stars are very few. The poet is trying to convey that the stars are very beautiful. They are talking about daffodils, bache, not the stars. Okay. This poem has been taken The from the daffodils are very beautiful. So daffodils is what? Nature. Flower. First of all, बच्चे, you have to explain what is stated there. ठीक है, पहले आपने बताना है कि स्टेंजा में क्या है. फिर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द स्टेंजा, यानी आपने उससे क्या नतीजा लिया, जो पोएट कन्वे करना चाह रहा था वो क्या है उसका मैसेज. जी अयान अली. Ma'am, he is trying to convince that the nature is beautiful. Very well done. This is the answer of the first question. What about what is the implied message of the stanza? Okay, let me answer this question. You just have to write down the answer. Write down the answer. Abdullah, do you have copy and pencil? The poet shares the pleasantness of the scene that nature beside him was an absolute pleasure. Ma'am, pleasantness of the scene that nature Beside him, मतलब जहां वो खड़ा था उस जगह पर उसकी बात हो रही है ना. Beside him was an absolute pleasure as beautiful flowers are dancing. Beautiful flowers are dancing in the cool breeze. ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर. एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेटेड क्लियरली. यहाँ पर स्टेंजा में कहा क्या गया है, आपने जस्ट थीम बतानी है उसकी, कि वो खूबसूरती की बात कर रहा है और वो जो उन फ्लावर्स की बात कर रहा है जिसके साथ वो खड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट मैसेज क्या है, एम्प्लाइड मैसेज. द मैसेज इज टू एंजॉय the message is to enjoy the nature to heal stress and depression. The message is to enjoy the nature to heal stress and depression and love a peaceful life. And love a peaceful life. How we can achieve the peaceful life? By keeping in touch with the nature. आपको पता है ना, जब इंसान का दिल घबराता है या कभी इंसान परेशान होता है तो कहते हैं आउटिंग के लिए चले जाएं. ऐसा ही होता है ना, डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप किसी अच्छी जगह पर चले जाएं जहाँ अच्छा माहौल हो. ठीक है, तो नेचर जो है उसमें एक हीलिंग पावर होती है. इज इट क्लियर? तो ये इम्प्लाइड मैसेज है जो मैंने आपको लिखवाया है अभी. इज इट क्लियर बच्चे?
Yes or no, boys? Yes, ma'am. Yes, Done ma'am. with the message? Yes. Acha ji, the next one is, my life is cold and dark and dreary. It rains and the wind is never weary. My thoughts still cling to the moldering past, but the hopes of youth fall thick in the blast, and the days are dark and dreary. Dreary means dull or bleak. Weary means which is a thing which is never tired. Blast means come and crash anything in great quantity. ठीक है, तो अब इसका मैं आपको पैराफ्रेजिंग करवाती हूँ. पैराफ्रेजिंग की तो खैर जरूरत ही नहीं है क्योंकि they have not asked us to write down the paraphrasing. Let's answer the questions. Write the rhyming scheme and also write any one poetic device used in the stanza. जी बच्चे, what is the rhyming scheme? Dreary and weary Ma'am, क्या A होगी? A B B A. Very well done. Dreary, weary, A, past and blast, B, and dreary, फिर A, B, A. Very well done. And can you tell me any one poetic device? जी बच्चे, who will tell me? My thoughts still cling to the moldering past. Cling is the human quality, ठीक है, and they have given this human quality to thoughts. This is what personification. Similarly, moldering, डिके होना, इंसान डिके होता है, चीजें डिके नहीं होती, ठीक है, तो मोल्डरिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. इज इट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज व्हिच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड इन द स्टेंजा. किस चीज के बारे में बात हो रही है? वो कह रहा है माय लाइफ इज कोल्ड एंड डार्क एंड रेडी, मेरी लाइफ फुल ऑफ वरीज है, परेशानियों से भरी हुई है. इट रेन्स एंड द विंड इज नेवर वेरी, मतलब परेशानियां आती ही जा रही हैं. द वरी that are upon me, they never stop. They still come on and they do not stop. My thoughts still cling to the moldering past, and जो मेरी thoughts हैं they are attached to the past. यानी जो मेरे साथ पहले परेशानियां हुई, गुजरी, जो कुछ भी हुआ वो अभी तक मेरे साथ चल रही हैं, परेशानियां और तकलीफें जो भी मेरा पास था. But the hopes of youth fall thick in the past. लेकिन वो कहता है इन सारी चीजों में मेरे साथ जो चीज स्टे कर रही है वो क्या है? होप. And the days are dark and dreary. In the difficult time, still the hope is inside me. Is it clear? अब बताइए कि which aspect of human life has been depicted in this stanza? Okay. Should I answer this question for you? Ayan Ali, Abdullah? Yes, sir. Okay. Are you able to answer this question? Which aspect of human life has been depicted in the stanza? I know, आप ma'am. पढ़ा हुआ, I know that आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन चलिए आप लोग आंसर लिख लें इसका भी. Human wishes are never fulfilled. Human wishes are never fulfilled in youth. Everyone makes future plans. Some are achieved and some are not. Some are achieved and some are not. The people get depressed. Some are achieved and some are not. And the people get depressed. And the people get depressed. ठीक है? समझ आ गई बच्चे? Yes, ma'am. तो इनमें क्या बताया गया है? ह्यूमन लाइफ जो यूथ में इंसान प्लानिंग करता है, इसमें इंसान की इस एस्पेक्ट को मेंशन किया गया है कि इंसान बहुत कुछ जिंदगी में गुजरता है, उस चीज से मतलब मुश्किलात परेशानियों से गुजरता है, चाहे वो जवानी हो चाहे वो बुढ़ापा हो, ठीक है. लेकिन क्या चीज ज्यादा इसमें बेसिक चीज क्या मेंशन की गई है, किस एस्पेक्ट को फोकस किया गया है? वो इंसान की जवानी की जो उसने प्लानिंग की होती है उसके बारे में मेंशन है, ठीक है, और होप के बारे में मेंशन है. Third question is, how does the mood of the poet corresponds with the environment around? जी बताइए वो क्या सोच रहा है इसके बारे में.
ये भी मैं बताऊं आपको? जी बच्चे, मैम वो सारा कुछ मुझे ये मतलब बताइए, KFC इसका का जो मूड सारा हैप्पी कुछ है हो या रहा है। सैड है? इसका मूड हैप्पी है या मैम सैड है? सैड 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 है, मैम सैड है मूड ना? है मैम, वो अपने पास के बारे में सोचता जा रहा है कि मेरा इतना बुरा हुआ है मेरे साथ। वेरी वेल डन। और वो ये सोच रहा है कि मेरी जो सोचे हैं वो क्यों नहीं जा रही, क्योंकि उसकी कुछ अनफुलफिल्ड जो है विशेस है जो पूरी नहीं हुई, तो वो इसीलिए उन्हीं के बारे में सोचता है। जब इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ठीक है, इंसान उदास कब होता है? जब उसकी विशेस पूरी नहीं होती। ऐसा ही है ना? है यस कि मैम नहीं ऐसा? ऐसा ही है ना? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता चलता है कि द हिज मूड इज सैड, माई लाइफ इज कोल्ड एंड डार्क एंड ड्रेरी। ठीक है, अब लिखिए इसका आंसर। हाउ डज द मूड ऑफ द पोएट कोरिस्पॉन्ड विद द एनवायरमेंट अराउंड? द पोएट हैज सैड मूड excuse me. The poet has sad mood because of desires unfulfilled. Because of the desires unfulfilled. Sad mood corresponds with rain. Sad mood corresponds with rain that falls without being tired. It means human worries are never diminished. Human worries are never diminished. DEMINISHED. Human worries are never diminished. DEMINISHED. और फिर हमने बच्चे, आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसका मूड कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। यानी उसने अपनी लाइफ को कंपेयर किया है एनवायरनमेंट के साथ। जैसे रेन आती है वो रुकती नहीं है, परेशानियां भी इसी तरह आती हैं वो रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये इस सेंस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ अपने मूड को। इज इट क्लियर? यस मैम अयान, अब्दुल्ला, समझ आ रही है बच्चे? अब्दुल्ला, कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। Yes, ma'am. हाँ जी। अच्छा बच्चे, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। Rich nations, अच्छा, boys do remember, read the sentence properly and then give me the appropriate adjective, okay? Rich nations can afford to feed the dash people. Feed आ गया तो किस people को feed करेंगे rich nations? Poor people. हम्म? Poor पुअर people. नहीं, feed कर रहा है। Needy people. Hungry people. Rich nations can afford to feed the hungry people, starving people. पुअर क्यों नहीं मैं यहाँ लगा रही, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो पुअर उसमें भी सूटेबल है। ठीक है, द डैश पीपल हु स्टोरीज अपीयर्ड इन दिस न्यूज़पेपर लास्ट वीक हैव नाउ फाउंड अ प्लेस टू लिव इन। द होमलेस पीपल होमलेस पीपल, क्योंकि उनको पहले प्लेस नहीं मिली तो अब प्लेस मिल गई, न्यूज़पेपर में ये चीज मेंशन हुई। ठीक है, डैश पीपल नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, सो मनी मस्ट बी स्पेंट ऑन हॉस्पिटल्स। Old द इल people. पीपल इल हाँ, इल Old people. ill people, sick people. Life must be very hard for dash people in our society today. So government must set new industries to overcome this issue. जॉबलेस जॉबलेस, वेरी वेल डन। अब देखिए, पूरा आपने पढ़ा ना तो आपको समझ आई है। सेंटेंस पे फोकस करेंगे तो आपको खुद ब खुद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। द प्राइसेस ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स मस्ट बी रिड्यूस टू गिव डैश एडवांटेज टू द जनरल पब्लिक। कितना एडवांटेज होना चाहिए? Some. नहीं, सम तो फिर थोड़ा सा होता है ना। देखो वो क्या कह रहे हैं, द प्राइसेस ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स मस्ट बी रिड्यूस टू गिव डैश एडवांटेज टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि उनको कुछ रिलीफ मिले। अगर हम जो डेली यूज की चीजें हैं उनपे हम कम कर देंगे टैक्सेस को, तो जाहिर ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी। जी बच्चे, मैक्सिमम, टू गिव मैक्सिमम एडवांटेज।
ठीक है, सम भी आ सकता है लेकिन सम इतना जो है यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा, मैक्सिमम एडवांटेज आएगा। ठीक है, यूज द वर्ब्स एज डायरेक्टेड इन द पैरेंथेसिस, एनी 5, लेकिन हम तो सारे करेंगे। ठीक है, नाउ बच्चे द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू यू, you just have to change the sentence according to the instruction. She cuts vegetables, change into simple past tense. She cut vegetables. She cut vegetables. He drew the sword that he might defend himself, change into past continuous tense. He was making he was drawing the sword that might defend himself. He was drawing the sword that he might defend himself. Very well done. अच्छा, मुझे ये बताइए कि why didn't we change the verb in the second clause? Why didn't we change it? यहाँ हमने क्यों नहीं चेंज किया, पहले में क्यों चेंज किया है? He was drawing the sword that he might defend himself. जी अयान अली बताएंगे मुझे? अब्दुल्ला बताएंगे, अयान अली बताएंगे, कौन बताएगा मुझे? जी सेकंड चेंज करना है कि नहीं करना? नहीं तो वही सेम ही तो आया है। क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ सेम ही तो आया है, तो फर्क क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा बेटा क्वेश्चन ये है, अब आपने मुझे चेंज करके बताया ना पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आपने कहा ही वॉज ड्राइंग द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपने पास्ट कंटिन्यूअस लगा दिया, तो इस क्लॉज में क्यों नहीं लगाया? पहले मैं लगा लिया ना, क्योंकि हाँ तो दोनों में नहीं लगाना होता? नहीं अच्छा आपको कैसे बता अब्दुल्ला के दोनों में नहीं लगाना? बेटा पता नहीं। सेंटेंस पढ़ो ना, सेंटेंस को पढ़ो। देखो आप एक्शन शो कर रहे हो ना, उन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस कहा है कि वर्ब को आपने चेंज करना है। ठीक है, मेन वर्ब कौन सा है आपके पास? ड्रू है, जो सेकंड फॉर्म है ड्रॉ की। ठीक है, हमने चूंकि मेन सेंटेंस को चेंज करना होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो सारा एक्शन फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज से आ रहा है ना। ठीक है, पहले ये हो रहा था मैम, मेरे को चेंज करना होता है। जरूरी तो नहीं है, बाद में दो दो भी चेंज होते हैं, शायद आज है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट येट फिक्स, चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर। The time when the boat will leave is not fixed. अच्छा, तो आपने यहाँ विल लीव तो लगा दिया, यहाँ इसको क्यों नहीं हटाया? Mm, क्योंकि यार देखो, अगर आप ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये जो क्लॉज है ये निकाल दो, आप पढ़ो जरा सेंटेंस को। the time is not fixed yet. देखो, अब आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? द टाइम इज नॉट येट फिक्स। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इसके बारे में, हमने पूरा सेंटेंस की थीम तो नहीं चेंज करनी ना। समझ आ रही है आपको? हमने सेंटेंस की थीम तो नहीं चेंज करनी, हमने सिर्फ क्या करना है, जो मेन वर्ब यहाँ लगा होगा, अब ये जो आपके पास है ये तो लिंकिंग वर्ब है, जब मेन वर्ब आपके पास है तो उस मेन वर्ब में आप लगाओगे, चेंजेस करोगे। द टाइम व्हेन द बोट विल लीव इज नॉट येट फिक्स, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये प्रेडिकेट है इस टाइम का। आपको मैंने बताया है ना कि जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम देते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको पढ़ाया था लिंकिंग वर्ब जो लिंक करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने सेंटेंस की थीम नहीं चेंज करनी, हमने वर्ब चेंज करना है। द टाइम व्हेन द बोट विल लीव इज नॉट येट फिक्स्ड। क्लियर? समझ Yes, आई बच्चे? अच्छा जी, नेक्स्ट वन, ही थॉट दैट ही वाज सेफ देयर, चेंज इट टू पास्ट परफेक्ट टेंस। he had thought that he was safe there. नो, जी सोचिए कैसे चेंज करना है। मेन वर्ब कहाँ है बेटा? मेन वर्ब किधर है? And thought. थॉट मेन वर्ब है, उसने सोचा दैट ही वाज मैम सेफ। मैम he had been saved there. हाँ जी, याद रखिए बच्चे, आपके पास जब दो क्लॉजेज होती हैं
तो आपने उसकी थीम को नहीं चेंज करना। अब आप इसको कहोगे ही हैड थॉट दैट ही वाज सेफ देयर। याद रखिए कि जो मेन आपके पास थीम है उसको चेंज नहीं करना आपने, वो तो वही रहेगी ना। एक्शन क्या हो रहा है, दैट ही हैड बीन सेफ देयर। ठीक है, एक्शन ये हो रहा है, आपके पास कंप्लीट सेंटेंस ये है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही अयान? जब आपके पास दो क्लॉजेज होती हैं, जैसे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दैट के बाद डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि एक में पास्ट टेंस लगता है, एक में पास्ट परफेक्ट लगता है। आपके पास थॉट पास्ट में लगा हुआ है, आपने आगे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक, ही Okay. थॉट दैट ही हैड बीन सेव देयर, क्योंकि ये आपके पास जो है सेंटेंस की थीम बता रहा है, इसको आप नहीं चेंज करेंगे। ठीक, इट इज रेनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। It has been raining. इट हैज बीन रेनिंग। अच्छा, सिंस और फॉर हम नहीं लगाएंगे, नहीं मैम, हम खुद से नहीं लगा सकते सिंस एंड फॉर। क्यों मैम, टाइम ही नहीं पता हमें। टाइम भी नहीं पता और खुद से हमने कुछ एडिशन नहीं करनी होती, जो हमें उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया होता है हमने वही करना होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड इज अनट्रू, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कैसे चेंज करेंगे? अब अयान और स्टार्ट में लेकर आते हो, ठीक है, और फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, ऐसा ही है ना? आपके पास अगर ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो आप उसको उठाकर पहले ले आते हो और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हो, देन यू कैन चेंज द सिंपल स्टेटमेंट इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसको चेंज करो, कैसे चेंज करोगे? Was the report that he was killed is untrue? हम्म, Was the report that he was killed is untrue? नो बच्चे, यू हैव यूज्ड टू ऑक्सिलरी वर्ब्स, यू कैन नॉट यूज। जी अयान, आप बताइए। Ma'am, is the report that he was killed untrue? वेरी वेल डन। अब्दुल्ला इधर देखिए गौर से बेटा, ये सेंटेंस आपके पास डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका पास इंडिपेंडेंट का इज है, तो इसको उठा के स्टार्ट में ले आओ, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, इज द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड अनट्रू, इज उठा के पहले ले आए और द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड अनट्रू एंड में क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। आपने मेन वर्ब को देखना है, जो सेंटेंस की मेन थीम है उसको देखना है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब उठा के स्टार्ट में ले जाओगे, तब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। ठीक है, अगर आप इसका वॉज उठा के शुरू में ले जाओगे तो क्या आपका सेंटेंस बनेगा? वॉज द रिपोर्ट दैट ही किल्ड इज अनट्रू, ही किल्ड क्या, तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, मीनिंग क्लियर नहीं होता ना, हमने मीनिंग तो चेंज नहीं करना, हमने जस्ट क्वेश्चन फॉर्म में उसको चेंज कर देना है, क्वेश्चन टैग में लेकर आना है। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. समझ रही कि आपने कहाँ गलती की, इसको चेंज करें। अब आप नंबर 6 को। Is the report that he was killed is untrue? नहीं, अगेन यू मेड अ मिस्टेक। क्या वो is the report that he has killed is untrue? नहीं, Why are you changing the tense, बच्चे? They did not ask you to change the tense. They just asked you to change this sentence into the interrogative. Interrogative क्या होता है? Auxiliary verb को उठा के start में ले जाओ, end में question mark लगाओ, then it becomes a question tag. यहाँ से is उठाइए। is the report that he Killed, killed is untrue? इस दोबारा नहीं लगाना, ये आपने खत्म कर दिया, वैनिश कर दिया, इसको स्टार्ट में ले आए, इस जगह से वैनिश करके स्टार्ट में ले आए, तो आपका बन गया इज द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड अनट्रू। यू कैन नॉट यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस सेम टाइम। तो इस दोबारा नहीं लगेगा, इस स्टार्ट में लगेगा एंड फिर यहाँ पर अनट्रू जस्ट आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, ही थॉट ही न्यू योर एड्रेस, चेंज इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। He thought he knows your address. He thought he knows your address. अब्दुल्ला, आप क्या कहते हैं? Ma'am, he knows your address. Very well done. Shabash. Next one is punctuate the following paragraph. Now tell me where we have to add in the punctuation. Capitalization is also a part of punctuation. Okay. G. Who will punctuate this line? Abdullah. Yeah.
जी बेटा, punctuate this line. So you are on the job every day. I hugged him. मैम ये एस कैपिटल, हम्म, मैम यू आर में वो आर से इधर नहीं लिखा कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे. वेरी वेल डन. मैम, कॉमा मैम आएगा एवरीडे आई के बाद हग फुल में स्टॉप, और एंड हाँ, में फुल स्टॉप। और मैम एवरीडे के बाद फुल स्टॉप और हिम के बाद फुल स्टॉप। मैम एवरीडे के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा बेटा. देखो, कॉमा ये आएगा। डायरेक्ट स्पीच है. ये डायरेक्ट स्पीच है. आई हग्ड हिम. ठीक है, उस बंदे ने बताया क्यों उसने हग्ड हिम. सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे, मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए उसने उसको गले लगाया. तो ये डायरेक्ट स्पीच है. तो आपने क्या करना है, एस शुड बी कैपिटल, यू आर के ऊपर जो कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, सेकंड पंक्चुएशन वो हो गई. ऑन द जॉब एवरी डे कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और एंड में लगेंगे, और आई हग्ड हिम के बाद फुल स्टॉप लगेगा. समझ आ गई. 6 यस पूरे हो मैम। गए. यहाँ पर स्टार्ट में आपके पास इन्वर्टेड कॉमास ओपन होंगे. एस कैपिटल हो गया, 2 हो गए. यहाँ पर आपके पास कॉन्ट्रेक्शन का कॉमा लगेगा, 3 हो गया. एवरी डे के बाद कॉमा लगेगा, 4 हो गया. ऊपर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, 5 हो गया. और एंड में हिम के बाद फुल स्टॉप लगेगा, 6 आपकी मिस्टेक्स आ गई. क्लियर. यस यस मैम। नेक्स्ट आ जाती है सेक्शन सी, मार्क्स 20 का. राइट एन ईमेल टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम फंड्स फॉर एडमिशन फी. ओके बच्चे, डू यू नो द पैटर्न ऑफ ईमेल राइटिंग? यस मैम। Okay, who will tell me the pattern of email writing? मैम टू CC No, no, पहले टू नहीं होता, पहले मैम। फ्रॉम होता है. किसकी तरफ ओ से लिखा जाता है ईमेल में, हमेशा फ्रॉम होता है, आपने देखा होगा. यस मैम। सेकंड नंबर पर मैम आता है. फ्रॉम टू CC BCC और उसके बाद लाइन लीव सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सैल्यूटेशन होगा. सैल्यूटेशन में अब यहाँ पर लिखा जा रहा है फादर को, तो डियर फादर, रिस्पेक्टेड फादर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. अच्छा बॉयज, डू रिमेम्बर, आपके ना यहाँ पर चेक कीजिए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ. इस वाले में तो नहीं है, खैर फर्स्ट वाले में है. उन्होंने एक एक पॉइंट जो है ना, 0.5 करके ना, एक एक स्टेप के, आपका जो पैटर्न है उसके एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं. अब जैसे सैल्यूटेशन के हैं, सब्सक्रिप्शन के हैं आपके, इसी तरह बॉडी के हैं, इसी तरह एड्रेसेस के, सबके मार्क्स होते हैं. 8 मार्क्स का है. ठीक है, हाफ मार्क्स आपके पैटर्न के होते हैं और हाफ आपके बॉडी के होते हैं. तो आपने पैटर्न को गलत नहीं लिखना. ठीक है. अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आ गई. सैल्यूटेशन के बाद आपके पास बॉडी आ गई. डू रिमेम्बर बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल राइटिंग एंड द इनफॉर्मल लेटर राइटिंग? क्या फर्क है दोनों में? सर मैम ईमेल वाले इनफॉर्मल लिखते हैं, हमेशा मैम ईमेल लिखते हैं, जो मेल होता है वाले वो लिखते हैं। वन बाय वन बच्चे, वन बाय वन. जी अब्दुल्ला, आप बोले. हम उस टाइम ईमेल लिखते हैं, उस पर हम नहीं लिखते, वो लेटर होता है उसमें हम डेट वगैरह लिखते हैं उसकी जगह। नहीं, वो तो चले, एड्रेस का तो वो होता है ना, चेंज होता है, लेकिन उनमें फर्क क्या होता है, मैं ये कह रही हूँ, ताकि अगर आपको एक का पैटर्न याद होता है तो आप दूसरा भी लिख सको. देखो, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप सबसे पहले एड्रेस लिखते हो अपना. ठीक है, जैसे आप लिखते हो एग्जामिनेशन, अयान अली बच्चे कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा आता है, सिटी, कॉलन लगता है, A.B.C लगता है, फिर आपके पास डेट आ जाती है. डेट में आप उस टाइम की डेट लिखते हैं, 1 लाइन स्पेस होता है. ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट सैल्यूटेशन शुरू करते हो. आपके पास इनफॉर्मल लेटर में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता. समझ आ रही है? समझ आ यस रही है मैम। कि नहीं आ रही? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता. फिर आपके पास बॉडी आ जाती है. बॉडी के बाद आपके पास क्लोजिंग सेंटेंस, जिसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो आ जाता है. क्लोजिंग लाइन आ जाती है. फिर सब्सक्रिप्शन आता है, जिसमें योर्स सिंसियरली, या जो भी आप जिसको लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने वो लिखना होता है, सब्सक्रिप्शन. वो लिखने के बाद कॉमा आता है, फिर एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जी फुल स्टॉप, और बस फिर आपका ये एंड हो जाता है. ईमेल राइटिंग में आपने 2 एड्रेसेस लिखने होते हैं, फ्रॉम, ठीक है, colon abc@gmail.com, टू, जो आप जिसको लिख रहे होते हैं उसका एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और फिर जिस तरह आपने बताया सारा कुछ होगा. और याद रखिए, इसमें भी क्लोजिंग सेंटेंस होता है और ये अलग लाइन पर लिखा जाता है. फिर सब्सक्रिप्शन होती है, जैसे यहाँ पर फादर को लिख रहे हैं तो योर लविंग सन हो जाएगा, एक्स वाई और जी हो जाएगा, और बीच में फुल स्टॉप्स आ जाएंगे तीनों. ठीक है. अच्छा जी, राइट एंड ये आपने लिखना है फिर. ठीक है, ये मैं फिर आपसे कल पूछूंगी इसका, कि व्हाट यू हैव रिटन इन द ईमेल.
Write an application for sick leave to the headmaster of your school. Okay, who will tell me the pattern of application writing? जी अयान अली. एप्लीकेशन राइटिंग आती है लिखनी? एप्लीकेशन लिखी है कभी? छुट्टी की है स्कूल से? एप्लीकेशन दी है कि नहीं? फोन पे ही बता देते हैं. आवाज नहीं आ रही है अयान अली, और म्यूट. मैम द प्रिंसिपल कॉमा और उसके बाद मैम जिस तरह हमारा स्कूल आ जाता है SLS मोंटेसरी एंड हाई स्कूल, फिर सिटी नहीं, आपने ABC। नेम नहीं मेंशन करना होता. बोर्ड के एग्जाम में कभी भी नेम मेंशन नहीं करते. आपने जस्ट लिखना है स्कूल, जिसका एस कैपिटल होगा. स्कूल के बाद आप लिखेंगे A.B.C. ठीक है, यहाँ पर आप ABC लिखेंगे स्कूल में. आपने नेम नहीं लिखना. ठीक है. फिर आ जाएगा सिटी कॉलन DEF या EFG, जो भी आप लिखना चाहो लेटर्स अल्फाबेट के. ठीक है. फिर उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा. फिर क्या आता है? मैम उसके बाद लीवर लाइन सब्जेक्ट, लीवर लाइन, हम्म. उसके बाद डियर मैम और या फिर ये नहीं डियर लगा, हेडमास्टर। नहीं डियर नहीं लगाते. ये इनफॉर्मल उसमें आता है, इनफॉर्मल वे आता है. फॉर्मल में लिखा जाता है एप्लीकेशन को हमेशा. ठीक है. इसमें आप डियर नहीं लगाते, रिस्पेक्टेड लगाते हो. रिस्पेक्टेड लगाते हो. वेरी वेल डन. फिर कॉमा लगता है. फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हो जो भी आपने लिखना है. इट इज स्टेटेड दैट या विद ड्यू रिस्पेक्ट या जो भी लिखना चाहते हो आप स्टार्ट करते हो. अपना जो मेन आपकी थॉट है वो बताते हो. जैसे आपको यहाँ सिक लीव चाहिए तो सिक लीव के बारे में आप बताओगे, पूरी तफसील लिखोगे. फिर क्या करते हो? मैम फिर एंड पे योर्स ओबीडिएंटली कॉमा और XYZ फुल पहले, स्टॉप। उससे पहले एंड करने से पहले जहां बॉडी एंड होती है आपने एक और भी लिखना होता है, जो पहले तो सेंटर में लिखा जाता था लेकिन अब लेफ्ट साइड पर ही लिखा जाता है. थैंक यू इन एंटिसिपेशन. ठीक है. जैसे हम एंड में कहते हैं ना जजाकल्ला, इस तरह ये इंग्लिश में जब आपकी बॉडी खत्म हो जाती है एप्लीकेशन की. अब्दुल्ला, आर यू लिसनिंग बच्चे? Yes, sir. तो सब्सक्रिप्शन से पहले आपने जो क्लोजिंग लाइन होती है वो यही होती है, थैंक यू इन एंटिसिपेशन फुल स्टॉप, या जस्ट थैंक यू लिख दें. और उसके बाद योर्स ओबीडियंटली कॉमा X फुल स्टॉप, Y फुल स्टॉप, Z फुल स्टॉप, एंड एंड में लिखते हैं डेटेड. और जिस दिन आपने लिखी होती है उस दिन की होती है. याद रखें डेटेड होता है एप्लीकेशन के एंड में, डेट नहीं लिखी जाती, डेटेड लिखा जाता है. और वो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एप्लीकेशन जो होती है वो हमेशा हम पहले लिखते हैं, तो वो इस चीज को स्पेसिफाई करते हैं कि हमने इस दिन लिखी थी, इसलिए डेटेड लिखा जाता है, डेट नहीं लिखा जाता. क्लियर? यस मैम। अच्छा. फिर आ जाता है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. नेचर द बेस्ट हीलर, माई आइडेंटिफिकेशन, एजुकेटेड पाकिस्तान. नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हो. अब्दुल्ला, यू ऑल्सो हैव टू राइट द पैराग्राफ. बच्चे आप जब तक नहीं लिखोगे ना, अभी मैंने आपका गुड मैनर्स का पैराग्राफ पढ़ा है, मैंने उसको भी डिस्कस करना है. ठीक है. तो आप जब तक नहीं लिखोगे यू वोंट बी एबल टू राइट ए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस राइटिंग. समझ आ रही है? अयान अली ने जो है, अयान अली बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अयान अली का थोड़ा सा ये है कि अयान अली उसमें पॉइंट्स कम डालते हैं. अयान अली, आपको जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ ना बच्चे, यू यस जस्ट हैव मैम। टू ऐड इन दोज पॉइंट्स. ठीक है. और ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर मस्ट टू बी यूज्ड इन द पैराग्राफ, डू रिमेम्बर. वो बहुत जरूरी है, नहीं यूज करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. इज इट क्लियर? यस अब मैम। आपने नेचर द बेस्ट हीलर, नेचर द बेस्ट हीलर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है. मैं दे ही देती हूँ. ठीक है अब्दुल्ला? अयान सुन लिया बेटा? यस मैम। अच्छा. अब अयान, आपका पेपर कब है इंग्लिश का? आपके मैम पेपर मेरा तो प्री नहीं। बोर्ड, मैम मेरे तो कब के हो चुके हैं। आपके प्री बोर्ड हो चुके हैं? यस मैम। अच्छा, कब हुए? मैम जब आपसे पहली क्लास ली थी उससे अगले दिन इंग्लिश का पेपर था। अच्छा, कैसा किया इंग्लिश का पेपर आपने? मैम अच्छा दिया था। अच्छा, तो कितने मार्क्स आए, रिजल्ट का पता चला? मैम रिजल्ट अभी 2-3 दिन में है। अच्छा. और अब्दुल्ला, आपका कब है बेटा? आपको तो प्री नाइन्थ मेरे है ना? जी जी मैम हो चुके हैं बहुत टाइम पहले। आपका टाइम है, लेकिन आपको फिर भी जो है ना, आपको जब तक लिखोगे नहीं ना बच्चे, तो आपको नहीं समझ आएगी. मैं बता दूं, आपके पास तो अच्छा टाइम है, आपने अच्छे टाइम पर ज्वाइन किया है. आप मुझे जब तक लिख कर नहीं दिखाओगे ना, तो आपके पास तो बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है.
आप तो फिर मुझे लिखकर क्यों नहीं दिखाते? आपको तो सबसे पहले लिखना चाहिए और अयान मुझे लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, आपको जरूर लिखना चाहिए, आपने दोनों पर लिखना है पैराग्राफ। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे? अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। पाकिस्तान इज फेसिंग सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम दीज डेज। उर्दू में ट्रांसलेट कौन करेगा इसको? अयान अली। मैम इंटरनेशनल का क्या होगा? बैनुल अक़वामी। अच्छा, यहां पर तो नेशनल का कौमी होगा और इंटरनेशनल का बैरूनी होगा। ठीक है, ओके। चले इसको ट्रांसलेट करें फर्स्ट सेंटेंस को। अब्दुल्ला बच्चे, आर यू बिजी समवेयर एल्स? पाकिस्तान को पाकिस्तान को बहुत सी कौमी और बैरूनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और दीज डेज को आप छोड़ गए। दीज डेज भी तो है ना बेटा। मैंने आपको क्या कहा है, आपने सबसे पहले एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद उसको तरतीब दे दो, आपने कहना है, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपने सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। अब आपने दीज डेज छोड़ दिया, आपके 0.5 यहीं कट जाएगी। ठीक है, आप देखिए आपके पास यहाँ तकरीबन 6 सेंटेंसेस होंगे। ये देखिए, यहाँ फुल स्टॉप है एक सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 फुल स्टॉप है, इसका मतलब है 6 सेंटेंसेस है। 6 सेंटेंसेस है, 6 मार्क्स है। इज दैट क्लियर? तो आप अगर इसमें कोई भी चीज छोड़ोगे ना, तो ट्रांसलेशन में डायरेक्टली आपके मार्क्स कट जाएंगे पूरे 0.5 0.25। समझ आ रही है आपको? तो आपने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। दीज डेज, इन दिनों पाकिस्तान को बहुत से अंदरूनी और बैरूनी या कौमी एंड बैरूनी मुश्किलात का सामना है, करना पड़ रहा है। इज फेसिंग है, ठीक है, करना पड़ रहा है। अवर एनिमीज आर इन ए कांस्टेंट परसूट टू हार्म अस। जी अब्दुल्ला, इसको ट्रांसलेट करें। हमारे दुश्मन काफी अरसे से हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वेरी वेल डन। अच्छा, एक चीज और है, आप बहुत अरसे से भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे दुश्मन बहुत वक्त से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वी नो इट वेरी वेल, और हम बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं। द एनिमी ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज वेरी क्लेवर एंड कनिंग। जी अयान अली, खुद से आपने कुछ एडिशन नहीं करनी। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको। जी, द एनिमी ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज वेरी क्लेवर एंड कनिंग। इस्लामी उम्मत के दुश्मन बहुत चालाक और बहुत होशियार है। चालाक और होशियार। ठीक है, टू गेट आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, हमें इन मुश्किलात से निकलने के लिए वी नीड ए सिंसियर एंड ऑनेस्ट लीडर हु कैन ब्रिंग अस आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। जी अब्दुल्ला, इसको ट्रांसलेट करें। इन मुश्किलात से निकलने के लिए हमें एक बहुत मुखलिस। सच्चा हमें एक सच्चा और ईमानदार हम्म। हाँ सरबराह जी, चाहिए जो हमें इस तबाही और बर्बादी। बर्बादी से बचाए। हाँ, ठीक है, बर्बादी मैम, से बचा ऑपरेशन जुल्म सके। नहीं होगा? ऑपरेशन जी, जुल्म नहीं होगा? समझ नहीं आई, क्या कहा है? ऑपरेशन जुल्म नहीं होगा? जुल्म भी होता है और इसके अलावा बर्बादी भी है ना। जुल्म और बर्बादी एक ही चीज है। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही वर्ड जो है वो लिखना है, आप इसको सिनोनिम्स भी तो होते हैं ना, आप डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, बस उसके मुताबिक होना चाहिए वो वर्ड। ठीक है, वी नीड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम अवर ग्लोरियस पास्ट। जी अयान अली। हमें अपने शानदार। हमें अपने शानदार माजी से सबक सीखना है। सबक वेरी, सीखने की जरूरत है। सबक सीखना चाहिए और सीखने की जरूरत है। राइट ए डायलॉग बिटवीन ए कस्टमर एंड अ शॉपकीपर ऑन प्राइसेस ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स हाइलाइटिंग द इशू ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? उर्दू में महंगाई को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बच्चे कल तक जो मुझे काम दिखाना है ना, वो है आपका ये पैराग्राफ, नेचर द बेस्ट हीलर। आगे ओके मैम। फिर मैं आपको वीकेंड पे पूछूंगी, सैटरडे और संडे वाले दिन आपने मुझे ये डायलॉग लिखकर दिखाना है।
ठीक Okay. है। अनाज अली, आपने मुझे डायलॉग तो लिखकर दिखाया था, लेकिन उसमें 8 सेट्स ऑफ डायलॉग्स नहीं थे, कम थे। 7 होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, 7 भी नहीं थे। मैंने आपको कहा था कि ईच सेट कंटेन्स 4 to 6 जो है सेंटेंसेस, 4 से 6 जो डायलॉग्स होंगे वो एक सेट कंसिडर होता है। मैम ये तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। हाँ जी, होता है ना, तो लंबा होता है तो हो। ठीक है, उन्होंने जो खुद जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसके बोर्ड में मुताबिक 8 होता है। सेट्स होते हैं डायलॉग के। हाँ जी, 8 सेट्स ऑफ डायलॉग मस्ट है। ठीक है। ओके। अब बहुत लंबी लंबी अगर लाइनें हैं तो उसको 2 कंसिडर कर लो ना। बहुत लंबी लंबी अगर आप सेंटेंसेस या डायलॉग लिख रहे हो तो उसको 1 कंसिडर मत करें, 2 कंसिडर कर लो ना। ठीक है। अच्छा बच्चे, आप मैं ना आपसे जो है क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा, मैं आपका जो है ना, आपने गुड मैनर्स के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है ना, मैं वो डिस्कस करती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गुड बाय करती हूँ। जी अब्दुल्ला, आपने ना जो पैराग्राफ लिखा है, एक तो लिखा बहुत छोटा है उसका, जो है बीच में कोई खास आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल नहीं किए। ठीक है अब्दुल्ला। दूसरी बात ये, स्टार्ट आपने ठीक किया, लेकिन जो सेकंड लाइन आपने स्टार्ट की है ना, दे रेफर टू गुड, टू नो हाउ टू प्रॉपरली ईट, प्रॉपरली टॉक, पता नहीं क्या, ठीक है, प्रॉपरली, हाँ, टॉक प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली एंड सिट प्रॉपरली। तो ये बहुत जो है ना सिंपल है। ठीक है अब्दुल्ला, आपने ना गुड मैनर्स का जो ग्रेड 8 के बच्चों के लिए है ना, उसमें थोड़ा सा आप अपग्रेडेड जो है ना आइडियाज यूज करो। ठीक है। अच्छा अयान अली, यू कैन लीव बच्चे, अगर आप जो है आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो आप लीव कर सकते हो क्लास। नहीं तो मैं इसको समझाती हूँ, अगर आपको सुनना है तो सुने, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है कि ये चीजें फिर आप भी रिपीट ना करें। ठीक है। अच्छा जी, देखिए, अब जिस तरह मैं कहती हूँ, अगर गुड मैनर्स के ऊपर मैं आपको कहूँ कि पैराग्राफ लिखे, तो टॉपिक सेंटेंस में कैसे लिखूंगी, गुड मैनर्स आर हेल्पफुल टू डिवेलप a positive attitude in a personality। फिर मैं उसको कहूंगी, मोर ओवर अ पर्सन विद गुड मैनर्स हैज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड ही इज फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। फिर मैं कहूंगी, एडिशनली ही इज रिमिनिस्ड बाय एवरीवन, मतलब उसको मेमोराइज किया जाता है, हर बंदा उसको याद रखता है। फर्दर मोर, अब देखिए मैंने ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यूज किए हैं, इसमें आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यूज नहीं की। ठीक है अब्दुल्ला। एक तो ये कि आपने थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेड जो है आइडियाज यूज करने हैं, बिल्कुल सिंपल आइडियाज नहीं यूज करने। ठीक है, समझ आ रही है आपको। फिर दूसरी बात ये कि आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं यूज की, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी 6 to 8 यूज करनी है। ठीक है। ये 2 चीजें थी जो मैंने कहा था कि आपको बताऊंगी कि आप गुड मैनर्स का फिर दोबारा लिखेंगे। समझ आ रही है। और जो मैंने बताया आपको, अच्छा जी बेटा, आई डोंट माइंड अगर आप लोग हेल्प लेते हो गूगल से, मैं मना नहीं करती। ठीक है, क्योंकि आप जब तक रीडिंग नहीं करोगे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। लेकिन करना क्या है, आपने कॉपी नहीं करने वर्ड्स। समझ आ गई। कोई एक ऐसा वर्ड है जिससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, वो वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने सेंटेंसेस को कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। समझ आ रही है।